Assalamu alaikum and welcome everyone. My name is Numair Shahzada and I'm marketing manager at the NIC. Today we have with us on Gurus at NIC Badr Khushnood. He needs no introduction, but for those who do not know, Badr has worked with the likes of Google, Facebook, and Twitter. Badr primarily focuses right now on scaling his award-winning e-commerce platform, Fishery.com. You should check it out. It's trusted by dozens of successful brands where they're growing their e-commerce websites. Badr is also co-founder and VP of Growth for Bramers. He serves as an executive in residence at LUMS University and is the head of the e-commerce committee for Pakistan Software House Association, Pasha. But there's also leading the National E-commerce Council, reporting to the PM. Today, our focus will be SMEs, startups, and the value of e-commerce and technology for them, especially during these times. This is an interactive session, so we hope you send us lots of questions. Badr, welcome to the show. Tell us about yourself. Where did you grow up? Where did you study? How many siblings do you have? Interesting. This is the first time किसी ने मुझसे ऐसी चीज पूछी है. Appreciate it. Thank you so much, Numair, Abed, Fasi, everyone, Shariar, for hosting me, taking time out, and great to see you guys once again. मैंने कहाँ से पढ़ा, क्या किया? That's interesting. So मैं honestly speaking, मैंने कुछ टाइम अपनी जिंदगी में उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, बिकॉज हमारे टाइम पे ज़ियाउल हक साहब ने इन्फोर्स कर दिया था उर्दू मीडियम, तो हमारे स्कूल में भी उर्दू मीडियम हो गया. और वो तो फॉर अ व्हाइल I studied, एकदम हम 2 into 2 4 पढ़ते पढ़ते 2 दूनी 4 पे चले गए थे. तो been through that cycle as well back in the day. So I studied from the Crescent Model School in Lahore. I've always been in Lahore, तो मेरी सारी स्कूलिंग वहीं से है. मैंने FSC भी वहीं से किया, Crescent से किया. And then and honestly I wanted to go to Air Force, by the way. मैंने pre-engineering में admission लिया था. But वो जिसे कहते हैं ना कि man proposes, God disposes वाला सीन था. तो FSC में my father was diagnosed with cancer and very quickly he passed away within a couple of years. तो पूरा वो track change हो गया. नहीं बिल्कुल. तो that's where he actually suggested कि नहीं तुम Air Force में ही जाओ, तुम मेरा business देखना. So I changed my track from engineering to general science ताकि मैं humanities पढ़ के, तो मैं उन्होंने कहा कि एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है LUMS, वहाँ से MBA करना. And then so track change हो चुका था by the time he wasn't here, और business wrap up हो चुका था. So I moved on and did my bachelor's from the Government College Park Lahore, because मेरी काफ़ी family वहाँ से थी. तो that's where everyone suggested कि ये रावियन होना भी ज़रूरी है लाहौर वालों के लिए. तो graduated from there. इस सब कोर्स में मुझे एक कंप्यूटर मिल गया मेरे कज़न का, and that actually changed the whole dynamics later on if I now connect the dots. And it was it was an 8088, वो जो monochrome green and black वाला होता था, floppy drives वाला, वो वाला कंप्यूटर था. Wow. Can't relate to that. I'm sure you guys were not born then. So उसमें different time. So that's where I kicked off my kind of journey, because वो हमारे घर में सिस्टम ये था कि घर से बाहर जाने का इतना ज़्यादा नहीं है, दोस्तों वाला नहीं था कोई, तो used to spend a lot of time on that. तो तब ना वो RAM was like super vanity कि आपकी इतनी RAM है और कितने आपका हार्ड ड्राइव है और स्पीड कितनी है, फलां बहुत सारे मसाइल थे. तो I used to do all of this myself by hand, so which actually helped me learn everything. और तब अभी इंटरनेट नहीं था. This is the pre-internet era मैं बता रहा हूँ आपको. And then came the internet. This was 93 onwards पर इंटरनेट आया. तो इंटरनेट तब per kilobyte चार्ज होता था, per kilobyte. So the more you used, the more you had to pay. So you had to be really limited in your consumption. और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब ब्राउजर नहीं था. There was no browser. The internet was Netscape. हाँ, Netscape से पहले की बात कर रहा हूँ मैं. फिर Netscape आया. उससे पहले था Gopher होता था, और we used to do Gopher and Telnet and FTP और वो करते थे. तो फिर HTTP आया, introduce हुआ, and that's where the browser came in. और तो तब हमने अगर कोई वेबसाइट पढ़नी होती थी तो we would send an email and it would say getcnn.com. तो it would go and fetch the first page of cnn.com index HTML file. तो आपने पहली ईमेल आ गई, अब आपने उसके अंदर जो लिंक क्लिक करना है उसको आपने दोबारा गेट किया, फिर वो दूसरी ईमेल जाती थी, फिर वो वापस आती थी. And for all the kilobytes you were charged. So started from there. So that's where
हाँ, so things have changed. अभी I तो mean, कुछ you can, सोचते ही नहीं है. तो काफी change आया. So anyway, moved on. Dial-up. And, बिल्कुल We dial-ups and would all of those. listen to that sound happen. What a time it was, and where are we और इतनी मेरे going? को It's फोन दूसरी very साइड से फोन interesting. उठा लेता था, तो आपकी वर्ड्स डिस्कनेक्शन एक इशू होता था. बट एनीवे, मूव्ड ऑन एंड फास्ट ट्रैक आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स with masters in economics and management. Or but during this course, I think one thing which I, again in hindsight if I recall, was good that I did a lot of internships. तो मैंने बहुत सारी internships की. मैंने ABN AMRO Bank Packages Limited, इधर उधर बहुत सारी internships की. Known brands and unknown brands and small offices. I worked everywhere. And another thing where I started learning was that before LSE, didn't have much money to spend on those very expensive floppy drives and computer hardware and everything. तो मैंने क्या किया कि मैं हर वीकेंड पे अखबार के क्लासिफाइड्स में ऐड देता था कि अगर आपने कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ठीक करवानी है तो मैं आपका घर आके ठीक कर सकता हूँ. Wow. Amazing. Humble That's a beginnings. Richard Branson level story. That's where I started off. तो मैं वीकेंड पे फिर जाके, तो बहुत सारे लोग थे किसी के जिनके पेरेंट्स यहाँ होते थे, वो खुद बाहर होते थे, उन्होंने बच्चों ने पेरेंट्स को यहाँ कंप्यूटर दिया हुआ था, जैसे वो नेट टू फोन या वो तब तो स्काइप वगैरह भी नहीं था, तो दे वुड कनेक्ट एंड हैव अ कन्वर्सेशन. तब तो कॉल करनी एक्सपेंसिव बड़ी होती थी आउट ऑफ कंट्री, तो किसी का प्रिंटर नहीं चल रहा, छोटी छोटी चीजें बैक इन द डे. So I would just fix them and I would earn a little bit. And that's where I got my first customer as well, जो आज भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर है, और वो एक टेक्सटाइल कंपनी है, और उन्होंने उनको भी नेट टू फोन और ये चीजें सेटअप करनी थी. तो इस दैट्स वेयर आई लर्नड माय, आई वुड से द बिगिनिंग्स ऑफ माय डिजिटल नॉलेज. वहां से पिकअप हुआ. मैंने फिर उनकी वेबसाइट्स भी बनाई उसी तरह, एंड दैट तो स्टार्टेड ऑफरिंग देम एवरीथिंग. And then moved LSE से मैं graduate किया. I would say that is a very important. जी, sorry, आप नोमेर कुछ कह रहे थे? Very important element, the ritualistic aspect of going through the difficult times to get where you want to be. Hands on. तो सारा कुछ खुद अपने हाथ से किया हुआ है. And moved on, और फिर मैंने मेरी जो पहली जॉब थी वो भी एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ थी, निशात टेक्सटाइल के साथ. एंड दैट्स ऑल्सो वेयर मैंने, हालांकि मैं वहाँ एक्सपोर्ट्स देख रहा था, बट मैं साथ साथ छोटे मोटे IT के पंगे लेता रहता था वहाँ भी. तो मैं उनकी वेबसाइट बना ली, उनका कोई एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बना ली, और इस टाइप के काम करते रहना मैंने. सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. एंड देन मूव्ड ऑन एंड वर्क फॉर SMEDA, which is a government organization, so from private sector to public sector organization. Right. So experienced a lot of SME ecosystem, कैसा है, हमारे clusters किधर हैं, क्या हो रहा है. और वहाँ alhamdulillah I had an opportunity to work with Alibaba. So I launched Pakistan's first ever B2B portal back in early 2001. And it was in partnership with Alibaba. So signed an MOU on behalf of the government of Pakistan with Alibaba's founder, Jack Ma and his wife. और तब वो लोग इतने पॉपुलर नहीं थे और इतने VIP नहीं हुए थे अभी, तो they were so I had partnered them. But unfortunately SMEDA में कुछ ऐसी चेंजेस आई कि उन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं किया. अदरवाइज आज अगर याहू चल रहा है तो इसलिए चल रहा है कि याहू ने अलीबाबा में इन्वेस्ट किया था. That's the only reason Yahoo is known in the world today. Right. Otherwise उनकी कोई और सर्विसेज इतनी खास मोनेटाइज नहीं हो रही हैं. तो and I think that's exactly where SMEDA probably. तो वो that's I believe we should do a Gurus at NIC on the life journey of Badr Khushnur rather. नहीं तो just wanted to add के but तब विजन था कि B2B पोर्टल होना चाहिए. Zabardast. I mean, that is an excellent story. I believe we have to do another, session with you. Just listening to your stories, I mean, they're so amazing. So guys, the Badr sessions aren't going to end anytime soon. Okay, this is an ongoing thing. There's too much to learn. Yes. But that's actually I just wanted to share that because I think that gave me a lot of knowledge and diversity of knowledge actually. Because generally, अभी अब जो founders होते हैं वो बड़े single tracked होते हैं because they don't have diversity of experience. मेरे ख्याल में जब आप बहुत डाइवर्सिटी के साथ आते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हुआ होता है, तो हेंस योर आउटकम इज वेरी डायनामिक. तो वो मैंने SMEDA का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. डिड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. मूव्ड ऑन एंड वर्क फॉर ASUS व्हिच इज अ हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उनका मैं पाकिस्तान ऑपरेशंस देख रहा था. तो अगेन हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ चाइनीज ओन्ड कंपनी जो कि एप्पल और सोनी के OEMs थे. सो आई मीन देयर पेस ऑफ production and operations and were like super fast. So learned something interesting which is called the art of war. So Chinese
सेल्स में वो इस चीज को फॉलो करते हैं, द आर्ट ऑफ वॉर. So learned that part there. बहुत अच्छी learning थी. I think I recommend everyone or in audience के they should probably read that book as well, The Art of War उनकी Sun Tzu और तो वो बहुत अच्छी learning थी. Moved on and worked for Google. Google was a great opportunity. मैंने ऐसे ही आज शाम अप्लाई किया, अगले दिन सुबह उनकी कॉल आ गई and I had a 1-year process, recruitment process of interviews, background checks and so on and so forth. So August 28th 2005 को मैंने अप्लाई किया था और August 28th 2006 को मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ उनसे फाइनली. After a year of the process, which was very I had to be very patient. But interestingly, that went well. और फिर 9 years with Google were really interesting because वो Google के early days थे, अपने भी पाकिस्तान में भी इंटरनेट के early days थे. For me it was great learning and it was very entrepreneurial journey. But इससे पहले ही we had set up Bramers as 3 co-founders. So Bramers is Badr, Amir, Zishan, 3 co-founders, and that's where the name comes from. So we had already set up Bramers. I left Bramers for Google because to avoid any conflict of interest. With the promise कि जिस दिन मैं Google छोड़ूंगा 1-2 साल के बाद learning के बाद तो I'll join back Bramers. Come back. But I took good 9 years at Google. तो मुझे अर्सा ज़्यादा हो गया. Because it was needed at that time. I mean, there was this open time flew. Yeah, and time flew very fast. And you wanted to. बिल्कुल. तो टाइम बहुत जल्दी गुजरा, पता नहीं चला और वो 9 साल I mean, you have seen in many ways. जी बहुत कुछ देखा मैंने from some of the interesting cyber crimes to a lot of stuff. So I mean आज ही हम सुबह एक और सेशन में था तो I was just sharing के आज हम सब Google Maps पे ये सब ऑर्डर करते हैं, कभी Uber, कभी करीम, कभी बाइक किया. Just we don't realize कि किसी ने Google Maps manually draw किए पाकिस्तान के, literally, and that was in that time. We used to have mapping parties. Literally. मैपिंग पार्टीज हम होस्ट करते थे. मैं होस्ट किए बहुत सारे. I used to see the cars going around. वो तो 3D स्ट्रीट व्यू है, वो बात की बात है. उससे पहले जिसने लिटरली गूगल अर्थ से मैप को ट्रेसिंग किया है, तो वो जो ट्रेसिंग किया दैट वाज इन दैट टाइम. क्रोम लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड आया. So I had the honor of hosting Google's chairman Eric Schmidt in Pakistan. I brought him to Pakistan. Right. We did few very interesting projects. So it was great learning, I would say. I must admit. How did he like Pakistan? What were his thoughts? Oh, so he wrote a blog post that about the wrong perception about Pakistan. और वो blog post Google Plus पे तब डाली थी उन्होंने. अभी भी आप अगर सर्च करेंगे एरिक स्मिथ पाकिस्तान तो आपको वो कई वेबसाइट से मिल जाएगी पड़ी हुई उसकी कॉपी. और it was very interesting how he narrated के पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो तब हमारा काफी ज्यादा वो था post 9/11 सिक्योरिटी वाला इशू. तो उसने कहा कि वो परसेप्शन का प्रॉब्लम है, रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. So I'm not deep diving into his trip. It was very interesting otherwise. तो वो but speaking of the reality, बिल्कुल ठीक है. Speaking of the reality, you have seen and contributed in many ways to digital blossoming in Pakistan. How do you feel about where we are right now with COVID? Has digital adoption sped up more than we've ever seen before? How much and in what ways? Exactly. So quickly, so Google say moved on, and I worked for Twitter for a year. So that was another different learning because every celebrity wanted and every politician wanted their Twitter to be a blue mark, check mark, verified account. Or so those were also interesting times. And moved on and worked for Facebook for 6 months. So by chance, सब जगह मुझे opportunity मिल गई. और Facebook में मेरा roles are different. That was from product growth perspective specifically. But coming to your point, so having seen all of that, I think हम अपनी ट्रैजेक्टरी पे बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं जो हमें करना चाहिए था. आई थिंक हम और भी फास्टर 3G 4G अगर जल्दी हम कर लेते अडॉप्ट तो हम वी वुड हैव बीन अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन कोविड से पहले. बट हमने 4G को अडॉप्शन जरा लेट कर दी थी, जो हमारा वो हमने इसकी ऑक्शनिंग वगैरह तो उसमें टाइम लग गया था हमें. बट स्टिल आई थिंक वी कॉट अप फास्ट एंड आई थिंक वी आर प्रीटी गुड इन दैट सेंस. आई एम इम्प्रेस्ड कि मैं पिछले इस पूरे लॉकडाउन में massive ये webinars और video calls और वो कर रहा हूँ and I'm impressed के we have a very reasonably stable connectivity और सारा decently चला है. touch wood अल्लाह में खैर है कि you know इस call में कहीं problem आ रहा है, I have the backup internet ready so just in case. तो वो but I think even then एक और हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ. So one transition which I think is interesting कि हम one of the world's few mobile first countries हैं.
तो हमारे यहाँ लोगों के पास, जिनके पास पहले कभी कोई डिवाइस नहीं थी, ना कभी उन्होंने लैपटॉप देखा था, ना डेस्कटॉप देखा था, आज उनके पास एक इंटरेक्टिव डिवाइस है, हैंडहेल्ड, व्हिच इज अ So they've leap forwarded, you know, to a new करेक्ट, age. वो बीच में उन्होंने बिल्कुल ये सब किया कुछ हमने, skip किया. बिल्कुल. तो आई थिंक वी आर रीजनेबली गुड. आई नो के पॉकेट्स ऑफ चैलेंज तो हर जगह होंगे और बहुत सारी कनेक्टिविटी के इश्यूज भी होंगे और बहुत कुछ होगा, बट आई थिंक वी आर रीजनेबली गुड. एक जगह जहां हम लैग करते हैं वो लोकल कंटेंट क्रिएशन इन लोकल लैंग्वेज. बिफोर प्री वीडियो की बात करूं, प्री वीडियो जो लोकल कंटेंट है वो जरा कम है, बट वीडियो पे अब बहुत ज्यादा आ गया, बिकॉज हमारे यहाँ लोकल फॉन्ट नहीं डेवलप हुआ, वो लैंग्वेज को इतना हमने नहीं किया. फॉर एग्जांपल आज ही सुबह एक जगह बात हो रही थी व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर आप नोटिस करें पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कोई इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी नहीं पब्लिश हुई, बिकॉज हमने लैंग्वेज में इनोवेशन ही नहीं की कोई. तो हम कंप्यूटर को उर्दू में भी कंप्यूटर कहते हैं, ई कॉमर्स को भी ई कॉमर्स कहते हैं. तो क्वारंटीन को करंटीना कहते हैं. हाँ, तो we haven't really innovated much in terms of a local language, which is probably sad. I think we need, and we have, by the way, language organizations and institutions officially government में हैं, जो लैंग्वेज के इदारे हैं जिनका काम है कि इस ज़बान को वो ज़्यादा तरवीज दें और बढ़ाएं, बट अभी तक उस पर काम नहीं हुआ. So I think that's one gap, but otherwise I think we are on track. So talking about great advice for startups as well to look into that as a business opportunity as well, you know, Urdu, and sort of taking that forward. And like you said, Badr, businesses and customers are now more willing to interact online and experiment with new services. Some would say this is a great time to be online. It's not all doom and gloom. How do you see SMEs embracing this new era? What is the new normal for SMEs? I think SMEs, and especially having worked for SMEDA for a few years and seeing the SME ecosystem from a closer perspective, I think हमारे यहाँ challenge जो है वो mindset का ज़्यादा है. I'll be very honest. Tools, technologies सब available हैं, और service providers भी available हैं. The challenge is कि SMEs को mindset और direction देने वाले कम लोग हैं. So अभी तक या हमारे, और उसमें there are different challenges. For example, हमने अगर आप एजुकेशन एकेडमिक एंगल से देखें तो हमारे यहाँ या कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं या बिजनेस स्कूल के ग्रेजुएट हैं, MBAs या BBAs, बट इन दोनों का मिक्स नहीं है, बिजनेस एनालिस्ट नहीं है. सो हेंस दे कांट टॉक टू ईच अदर, दे डोंट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ. तो आईटी वाला कहता है मैं ओरेकल में, सैप में, इस डेटाबेस में, इस प्रोग्राम में ये बना के दूंगा. बिजनेस वाला कहता है सॉरी आई डोंट गेट इट, आई नीड माय ROI. सो दे डोंट नो ईच अदर, दे डोंट टॉक ऑन द सेम वेवलेंथ. तो ये एक SMEs में डिस्कनेक्ट रहता है, और एक ये चैलेंज मैंने देखा है कि बहुत बड़ा है. दूसरा चैलेंज ये है कि SMEs को, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मैं कर लूंगा. सो एवरी IT ग्रेजुएट, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसको अगर उसका कोई रिलेटिव कहेगा ना कि तुम मेरे लिए ERP बना दो, तो वो उसका ERP बना देगा. कोई उसको कहेगा वेबसाइट बना दो, वेबसाइट भी बना देगा. कोई उसको कहेगा मेरे लिए अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बना दो, वो भी बना देगा. He would not want to specialize, he would want to monetize quickly. तो स्पेशलाइज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सब काम इसी तरह के एक हड्डियों का डॉक्टर है, एक आंखों का डॉक्टर है और एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो एक ही बंदा सारे डॉक्टर नहीं बन सकता. इसकी बड़ी डीप डाइव आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें आपको अपना एक स्किल डेवलप करने की जरूरत है. तो SMEs का एक वो गैप है. और एक लास्ट गैप भी है, सॉरी आपके अगले क्वेश्चन से पहले एक गैप ये कि हमारे यहाँ हम IT एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं. हमारे बहुत IT कंपनीज हैं जो बहुत अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाहर कंपनियों को सर्विसेज दे रही हैं, मगर विद इन डोमेस्टिक इंटरेक्शन नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है ऑफ नॉन IT एंड IT कंपनीज. तो यहाँ की नॉन IT ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, लेदर वगैरह की कंपनियों को ये नहीं पता कि हमने पाकिस्तान की कौन सी कंपनियों से अपना कौन सा काम करवाना है, क्योंकि वो लोकल वो नहीं है. और फिर जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है. तो मैंने डील कर ली एक SME के साथ कि मैं उसको ये दूंगा, उसको और ये मिलेगा और इतने पैसे मिलेंगे. अगर मैंने इस काम सही नहीं दिया या उसने मेरे काम को एक्सेप्ट नहीं किया जो एग्री किया था, तो मैं कहीं इन्फोर्स नहीं कर सकता. सो हेंस देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज ऑलवेज व्हिच नेवर गेट रिजॉल्व्ड. तो ट्रस्ट डेफिसिट रहता है SMEs का और IT कंपनीज का. तो ये कुछ चैलेंजेस. अच्छा, चैलेंजेस की बात करें, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा. सो वी हैव डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स, वी हैव ग्रोसरी स्टोर्स, हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं. अभी तक दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्रिक एंड मोटर वाला मॉडल, राइट? दे आर नॉट रेडी टू एम्ब्रेस द डिजिटल रेवोल्यूशन. सो आई मीन इट्स सरप्राइजिंग टू सी कि आज के दौर में भी पिछले 2-3 महीनों में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, बट स्टिल देयर इज रेजिस्टेंस. सो व्हाई इज दैट रेजिस्टेंस? Why are they not, are awareness का कोई issue है, technical कोई gap है,
क्यों नहीं वो embrace कर पा रहे अब brick and mortar model से एक hybrid model या फिर all online model पे जाना, especially सारे जो है हमारे और especially बड़े-बड़े brands जो हैं, so they're also suffering. ये कोई मतलब small SMEs वगैरह नहीं, we're talking about bigger brands as well. They're not ready to embrace these things. I mean, this is what I fight every day, by the way, pre-COVID भी और post-COVID तो ज़्यादा. Very honestly and very candidly speaking, मैंने एक चीज़ मीडिया में सीखी थी and I think it still holds true very well. जब तक मौत नजर नहीं आती ना, हम बुखार नहीं एक्सेप्ट करते. We don't want to change. तो जब तक हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, और चेंज के लिए ना एक और बहुत बड़ा मसला है कि जब आप डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो दो बड़े चैलेंजेस हैं हमारे पाकिस्तानी एसएमईज के लिए. एक, कंट्रोल में ट्रांसपेरेंसी आती है जो कि हम नहीं चाहते. हमारे मियाँ साहब, सेठ साहब, ओनर ऑफ द कंपनी वांट्स टू कीप दैट कंट्रोल स्ट्रांगली, डजंट वांट टू डिसेंट्रलाइज इट. टू, आपकी जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी आती है, और हम देते नहीं है टैक्स, तो हमने अंडर रिपोर्टिंग की होती है, या वो चैलेंजेस भी हैं हमारे. और एंड राइटली सो, दे हैव देयर ओन चैलेंजेस, दे हैव देयर ओन राइट ड्यू चैलेंजेस के टैक्स अथॉरिटीज के साथ उनके अपने मसाइल भी हैं. तो इन दोनों चीजों की वजह से एक फेयर फैक्टर है कि यार मैं डिजिटाइज हो गया तो मेरा सब कुछ पब्लिक में आना शुरू हो जाएगा, या एटलीस्ट ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो मैं फंसना ना शुरू हो जाऊं, क्योंकि मैंने तो इतना डॉक्यूमेंट ही नहीं कभी किया था अपना बिजनेस. अब ये मुझे दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आई कांट नाउ डिनाई कि गूगल एनालिटिक्स पे इतनी ट्रैफिक है, इतनी सेल हो रही है वगैरह वगैरह, इतने क्रेडिट कार्ड के मेरे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वो कौन, हु विल देन बेयर दैट कॉस्ट. सो दैट्स द फेयर फैक्टर. एक ये मसला है. दूसरा मसला जो मैंने बताया कि वो माइंडसेट जो है, एक और ये है कि मैं अपने आईटी मैनेजर से इन हाउस काम करा लूं, एंड दैट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका अपना एक काम है, मगर आईटी जो ट्रेडिशनल आईटी टीम्स हैं उनका काम नेटवर्किंग, ईआरपी वगैरह वो वाला काम ठीक है, बट ऑनलाइन प्रेजेंस is a totally different ball game and different beast and needs to be handled in a different way. So even आप webinar आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, it's also there is a little piece of art to it, not just a science. There's a way to handle, manage, grow, scale, connect, interconnect. अब वो चीजें वो ये that's something where a traditional IT team cannot really manage that. Curating it, as you would say. Yes. और इनोवेशन जो है ना, डिजिटल वाली, जो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वाली साइड है, इसमें बहुत स्पीड पे आ रही है, जो कि ट्रेडिशनल आईटी में इतनी नहीं है. लैन केबल आज भी वही है जो 10 साल पहले थी, वो बहुत फर्क नहीं पड़ा उसमें. मगर जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग थी 10 साल पहले और जो आज है, इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट, काइंड ऑफ टोटली डिफरेंट. जो पहले वैनिटी थी वो अब कमोडिटी बन गई है चीज. तो आई थिंक वी मोस्ट एसएमईज डोंट रिकॉग्नाइज दोस फैक्ट्स. बट सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी, how they can deny it, because the emergence of e-commerce it's paved the way for inclusive trade and economic development. I mean, in the last 2 decades, and especially the spike we're seeing now, global e-commerce growth rate for 2020 is expected to come at 19%, bringing the total e-commerce sales worldwide in 2020 to $4.2 trillion. These are some great stats. There's a lot of opportunity here. And that is, just to add to that, that is 15% of the total retail. So जो global e-commerce है, that is 15% of the total retail. अभी भी पूरी दुनिया में भी ये नहीं हुआ कि 80-90% जो है वो ई-कॉमर्स पे आ गया. दुनिया का एवरेज भी 15% है. उसमें हमारी एवरेज पाकिस्तान की जो है, इस एवरेज के बेंचमार्क अगर आप करें तो वी आर एट लेस देन 1%. ग्लोबल एवरेज इज 15%. हमारा सिर्फ अभी 1% डिजिटाइज हुआ है ई कॉमर्स में, जो रिटेल ई कॉमर्स में गया है. इंडिया का 2% है, जरा सा उससे ऊपर होगा. अमेरिका इज 10%, यूएस इज 10%, एंड चाइना इज 25%. So China is leading. It's the East leading e-commerce and not the West. Yeah. So we have established the fact that the digital transformation it's coming at a very rapid pace. और जो embrace नहीं करेगा, they will be left behind. So what's the next step? I mean, SMEs को, startups को हम किस तरह एक तो make them aware, और what are the 3 advices or your 3 steps जिसमें वो अपनी online sales शुरू कर सकते हैं? So actionable items क्या हैं? ठीक है. For SMEs and startups. बिल्कुल. So एक चीज ये है कि जो मैं देख रहा हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वीक्स के अंदर जो जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, सो एक इंटरेस्टिंग ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले जो लॉकडाउन में ओपन अप किया वो ई कॉमर्स डिलीवरीज थी. He specifically mentioned e-commerce deliveries, right. which was a good sign
कि हमारी लीडरशिप और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी गवर्नेंस जो है और जो हमारे पब्लिक सेक्टर है वो रिकग्नाइज करना शुरू हो गया इस चीज़ को, ये एग्जिस्ट करती है चीज़ एंड कैन बी ऑफ बेनिफिट। दूसरा हमने उस तरफ अभी हमारे साथ असफंदियार फारूक भी कनेक्टेड हैं एज पार्ट ऑफ द ऑडियंस। सो असफंदियार ने हमने मिलके जो नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल के हम मेंबरान हैं, हम सब ने मिलके एसओपीज बनाए और हमने हुकूमत से उन एसओपीज पे एक ग्रीन सिग्नल लिया और फिर हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी उसको काम करके हमने जल्दी रिलीज करवा लिया। सो असफंदियार इज हियर, थैंक यू असफंदियार, आप टाइम निकाला। तो हमने एंड असफंदियार आल्सो रिप्रेजेंट्स चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. So that's another connection how Pasha and Chain Store Association of Pakistan worked together, tech and non-tech organizations. और हमने Ministry of Commerce के साथ मिलके इसको आगे लेके and we really support Ministry of Commerce leadership on this forum specifically. और उसका ये फायदा ये हुआ कि सबको ये पता चला कि अगर कोई फ्रंटियर जहां आप जाके आज खेल भी सकते हैं कोविड, पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन में, तो वो डिजिटल स्पेस है. So that's the only way to kind of continue your business and grow or scale up. जब ये बात डिफाइन हो गई, अंडरस्टैंड हो गई सबको, तो फायदा ये हुआ कि अब SMEs चाह रहे हैं कि हम डिजिटाइज हों, मगर अब एकदम वो चीज जो आपने पिछले 15-20 साल में नहीं सीखी, वो माइंडसेट नहीं रखा, तो वो चेंज करना, एक्सेप्ट करना रियलिटी को और आप राइट पार्टनर्स को चूज करना, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है जी, चैलेंजिंग है. तो अब इस वक्त वो काम हो रहा है कि वो सब आपस में दे आर प्रॉब्ली फिगरिंग आउट देयर बेस्ट वेज, बट दैट इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव. एटलीस्ट एवरीवन इज नाउ रियलाइजिंग कि डिजिटल इज द स्पेस और हमने एक स्पेस आगे जाना है. तो अब एंड आई कैन टेल यू लिटरली रेस्टोरेंट्स, फुटवेयर, एवरीवन इज नाउ रियलाइजिंग कि यार अब एक ही हमारी आउटरीच बेहतर हो सकती है और वो डिजिटल है. और आई थिंक लोगों ने ये भी रियलाइज किया है कि अब हमारे, बाय द वे उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी डोमेस्टिक डिजिटल लैंडस्केप रीजनेबली गुड हो गई है. सो वी हैव अबाउट 75 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान अलोन. तो हमें को अभी ये नहीं देखना कि क्रॉस बॉर्डर क्या हो रहा है, हम तो अपना ही मार्केट को एक केटर कर लें तो बहुत बड़ी मार्केट है हमारी, रीजनेबली गुड मार्केट है. मगर क्रॉस बॉर्डर बहुत अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि हमारी चीजें यहाँ से बाहर जा सकें. तो असफंदियार उस पर भी काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ और कस्टम्स और FBR वगैरह के साथ हम काम कर रहे हैं कि हम अभी तक जितने हमारे रेगुलेशंस थे SMEs की या किसी के लिए भी, वो ये थे कि लार्ज कंटेनर्स को जब आप बाहर भेजेंगे तो TDAP उसको रिकॉग्नाइज करता है कि पूरा कंटेनर बाहर चला गया और ये इस एक्सपोर्ट में काउंट होगा. उसका एक सिस्टम है जो VBOC कहते हैं, उसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज होता था और सारा कुछ. अब उसके अंदर वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, वी हैव सजेस्टेड स्टेट बैंक, FBR, कस्टम्स और इन सब के साथ कि अब जो है द न्यू एरा रिक्वायर्स कि हम ये स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स अलाउ करें और उनको रिकॉग्नाइज करें कि मैं एक चपली बना के, पेशावरी चपली या एक अच्छा जोड़ा बना के शादी का मैं बाहर भेज सकूं, जो कि 1-2 लाख रुपए का जोड़ा बन के जा सकता है और बाहर इतनी कैपेसिटी है कि लोग खरीद लेंगे, जो देसी भी बाहर हैं, डायस्पोरा हमारा बाहर है और जो नॉन डायस्पोरा भी है, जो लोग लेना चाहते हैं चीजें. हमारी बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो बाहर जा सकती हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कॉटन बेस्ड हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं. बहुत सारे लोग नहीं पहनना चाहते आर्टिफिशियल फिलामेंट्स, दे वांट प्योर कॉटन के फैब्रिक्स. So I think we have that in abundance and we have a huge opportunity to do cross-border e-commerce. So हमारे SMEs के लिए बहुत opportunity है domestic market में, online और international market में भी. And I think that's the space. आपने export की बात की, so we have a question as well. Mohammed Hasnan. Sorry, मैं questions पढ़ लिया. I hope you can help me. So his question is, what is the future of export companies post-COVID and how they'll come back again from the crisis? So future and how they come back from the crisis. जी, गुड क्वेश्चन. मेरा ख्याल है, आई एम नॉट एन एक्सपोर्टर माई सेल्फ, बट मेरा एक उस पर ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा हमें सबको अपने आप को पिवट करना होगा, चेंज लानी पड़ेगी, कुछ चेंजेस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा. मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट्स जल्दी वापस खुल जाएगी, लोगों की डिमांड्स हैं, ऑफ कोर्स सब कुछ होगा, बट विद इन न्यू नॉर्म, विद इन न्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस कि कैसे चीज़ें बनेंगी, कैसे चीज़ें डिलीवर होंगी, कैसे चीज़ें पैक होंगी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आई थिंक विल बी अ बेटर डिफरेंट वे कि कैसे होगा. मगर अब मेरे ख्याल में बड़े कंटेनर्स एक्सपोर्ट करने के बजाय हमें, जो कि रॉ मटेरियल लेवल के थे, हमें वैल्यू एडेड स्मॉलर पैकेट्स में एक्सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि हम हायर प्राइस भी फेच कर सकें. सो स्मॉल पैकेट, हायर प्राइस्ड एंड डायरेक्ट B2C rather than B2B2C.
तो अभी हमारी कंपनी जो बहुत सारी चीजें बनाती थी वो बाहर के ब्रांड्स के लिए बनाती थी, और बाहर के ब्रांड्स अपने रैक पे अपने ब्रांड के अपने नाम के साथ बेचते थे, उस पर छोटा सा लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान। राइट। अभी तक पाकिस्तानी कंपनीज ने अपने ब्रांड्स नहीं बिल्ड किए बाहर, एंड दैट्स व्हाट अगेन हम इस ई कॉमर्स काउंसिल में हम काम कर रहे हैं विद द मिनिस्ट्री के, और मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वो वर्किंग विद सम ऑफ द टॉप मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन, कि पाकिस्तानी कुछ एक्सपोर्टर्स को हम ब्रांड बिल्ड करके वहाँ उनको हैंड होल्ड कर लें उनका। तो राइट नाउ द मिनिस्ट्री इज वर्किंग विद सम ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स के उनके वहाँ ब्रांड बिल्ड हो जाए ऑनलाइन और डिजिटल प्लेस में, ताकि मार्केट प्लेसेस पे, ताकि वो यहाँ से अपने नाम से अपनी चीजें बाहर बेच सकें। Some of them may not succeed in the first instance, but I think the process has started, and that's an opportunity. कि अब हम लोगों के लिए चीजें बना के लो मार्जिन पे बेचने के बजाय हम थोड़ी चीजें बना के हाई वैल्यू क्रिएटेड हम हायर प्राइस पे डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचें। आई थिंक अब ये पॉसिबल है आजकल के जमाने में कि हम ये कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट में थोड़ा सा ये शिफ्ट आएगा और आना चाहिए, ताकि हम अपना पाकिस्तान के ब्रांड्स को बाहर पॉपुलर भी कर सकें। I think that is what I see will happen. Cool. It's the need of the hour. I mean, we've got 64% of Pakistan's population under the age of 29, and they're more open to embrace technology at that age. Like you said, the government, keeping this in mind, is taking many initiatives, including Kamyab Jawan, Ehsaas. E-commerce can provide employment to, I mean, what we know, 130 million of Pakistan's youth in the next 30 years. Can you tell us more about the policies and frameworks the government's working on in this regard? E-commerce policy framework. Cool. मैं आपको quickly बताऊं जी, I'll quickly share के क्या होता रहा है। So तकरीबन पिछली गवर्नमेंट से प्रोसेस शुरू हुआ था in the PMLN गवर्नमेंट, और फिर ये कंटिन्यू रहा 2-2.5 साल, और इसमें एक ई कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर डेलिब्रेशन होती रही कि हमारी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए। उस पॉलिसी की डेलिब्रेशन इवेंचुअली अक्टूबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रज़ाक दाऊद साहब के, और जो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, और सुखैरा साहब जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, और फिर आयशा मुरानी साहिबा, इन सब इन्होंने उसको फॉर्मलाइज किया और कैबिनेट से अप्रूवल लिया। इस प्रोसेस में हम एज पाशा इनके साथ इंगेज रहे, और हमने जितनी भी लोकल मार्केट से हम नॉलेज ला सकते थे और फीडबैक जितनी स्टेक होल्डर से ला सकते थे रेलिवेंट, हमने वो उसमें अकोमोडेट की और कोशिश की कि उसको जितना भी बेहतर कर सकें। ऑफ कोर्स ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते, एंड दे डोंट सर्व एवरीवन्स पर्पस, बट मेजॉरिटी के लिए दीज आर गुड। तो इसके कुछ नैरेटिव्स थे। एक नैरेटिव इसका ये है कि सो वी आर फोकसिंग ऑन 9 पिलर्स इन दिस कैटेगरी। सो डिफरेंट 9 पिलर्स हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 हाईलाइट्स हैं वो ये हैं कि पहली बात, इट इज वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पहली बात। दूसरी बात, सो इंपोर्ट्स नहीं, एक्सपोर्ट्स पे फोकस्ड है, पहली बात। तो अभी तक मोस्टली जो हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स पे चीजें बिक रही हैं वो काफी इंपोर्टेड आइटम्स थी, तो वी थॉट के ये जरूरी है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट की तरफ लेकर आए, तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है। 2, इसमें यूथ, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और एसएमईज पे बहुत फोकस है। जो भी आपने बात की कि यूथ बहुत हैं, सो वी नीड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि वो जॉब सीकर्स ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने, अपने छोटे छोटे ब्रांड्स बनाएं। सो इसमें बहुत अच्छे मॉडल्स हैं जो बाहर दुनिया में फॉलो किए गए हैं। फॉर एग्जांपल थाईलैंड में एक मॉडल है विच इज कॉल्ड OTOP, वन टाउन वन प्रोडक्ट। सो वहाँ हर विलेज में एक चीज बनती है, और इसीलिए आप देखें कि उनके, आप अगर थाईलैंड जाएं या इन ऐसी कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, उनकी एक एक जगह की छोटी छोटी चीजें जो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट वेरी हाई क्वालिटी। सोप्स होंगी, छोटी छोटी चीजें हैं, nothing fancy, but the way they pack it, the way they communicate it, the way they present it is just fantastic. Or even the fruit, I hope that we can start that level of hygiene. They cut it with gloves on, they put it in a plastic sleeve, and they give you a little stick that you can consume it with. It is so user friendly and so hygienic, and it's a very customer experience focused society that they have. Absolutely. So this is exactly what is needed. जिसको हम कहते हैं human centered design या customer focus या user experience. So I think that is something which is needed by our SMEs. हमारे यहाँ finish नहीं है, जो last mile जो polishing होती है ना, जो जिसको हम, जिसके लिए finishing schools होते हैं, वो missing है। हाँ, इस बात की हो जाते हैं, जल्दी में आ जाते हैं, वो सही तरह पैक नहीं करेंगे उसको, सही तरह उनको वो लास्ट माइल, आपको ना मजा नहीं आएगा कि मैंने चीज ली है। मतलब लिटरली अब आपको हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड, हमारे यहाँ जो बहुत है, मुझे चीजें बहुत पसंद है, बट मैं नहीं लेता बाजार से कि पता नहीं साफ पानी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ, या वो, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज इजीली इम्प्रूवेबल। हाँ,
तो वो Easily बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में आई थिंक हमें इन चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए और वो चीजें हमें आगे इम्प्रूवमेंट में, सो ई कॉमर्स जो है हमारा मकसद था कि एक्सपोर्ट्स को फोकस किया जाए इस तरह, ताकि हम ये वैल्यू एडिशन चीजें बना के आगे लेके, सो एसएमईज, यूथ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपोर्ट्स, सो दीज आर द प्राइमरी फोकस एरियाज। बाकी सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब पेमेंट स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत है, वो लॉजिस्टिक्स को ठीक करने की जरूरत है, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स 3PL जिसको कहते हैं हम, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, फिर एक्सपोर्ट्स के लिए चीजें बाहर जानी है, कैसे जाएंगी, कैसे कलेक्ट होंगी, कौन उनको पैक करेगा। उसमें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कैमल स्किन के लैंप्स बनते हैं, व्हिच आर वेरी डेलिकेट, very nice salt Never lamps हैं। even heard of this product before. Oh, they are That very sounds interesting very actually. interesting. So camel skin के लैंप्स होते हैं, फिर जिसमें salt lamps हैं। तो अभी तक जो दुनिया में salt lamps हैं वो the world knows them as an Indian product। Well, देखिए Meswak is now selling so expensive in Europe and the United States because they package it so well. They give it a fantastic brand. It comes in this. You feel like this is such an amazing product. उसको वो सर्टिफिकेशन लगाएंगे और बिल्कुल सर्टिफिकेशंस लगाएंगे और डिफरेंट प्रॉपर, सो सो दैट वैल्यू एडिशन इज रिक्वायर्ड। तो आई थिंक उसके लिए हमारी फिनिशिंग स्कूल्स की जरूरत है, या वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, या क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। सो आई थिंक सो ये ई कॉमर्स पॉलिसी में फोकस ये है। तो हमारी एक ई कॉमर्स काउंसिल की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ हो चुकी है। सो इस ई कॉमर्स पॉलिसी की एक ये थी रिक्वायरमेंट के दिस वुड रिपोर्ट, ई कॉमर्स काउंसिल विल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर और उनको रेगुलर अपडेट्स देंगे। सो हम एक दफा जैन फेब में मुलाकात कर चुके हैं और उसी में हमने फ्रीलांसर्स भी बाय द वे इसी कैटेगरी में ई कॉमर्स पॉलिसी के अंदर ही एड्रेस किए गए और उसमें हमने फ्रीलांसिंग्स के लिए कुछ चीजें फ्रीलांसर्स के लिए फॉरेन अप्रूव करवानी थी प्राइम मिनिस्टर से कि जी तकरीबन कि उनकी इनकमिंग इनबाउंड जो उनके पैसे हैं जो आते हैं डॉलर्स, वो उनको बाहर ना पार्क करने पड़े, वो बड़ी अमाउंट्स को भी एट अ लोअर KYC जो विच इज नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट पे जल्दी ज्यादा पैसे पाकिस्तान ला सकें। तो द प्राइम मिनिस्टर एग्री टू इट जेनरसली और फिर स्टेट बैंक ने भी उस पर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया। सो वी आर वेरी थैंकफुल के ऑल द स्टेक होल्डर्स रियली अंडरस्टूड दिस। हम इसी तरह अब एक एक चीज को पकड़ते हैं और जिसमें मैंने आपको बताया ट्रांसफर आ रहा है, इस तरह हमारे कोई 100-150 मेंबरान है, हमारा एक ग्रुप है ई कॉमर्स जितने भी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं और सब अपनी अपनी कोई ना कोई चीज पकड़ लेते हैं। पेमेंट्स वाले एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं कोई, एंड देन वी डीप डाइव इनटू दैट एंड वी ट्राई टू गेट दैट फिक्स्ड वन बाय वन ताकि हम अगले 1-2 साल के अंदर इतने रेडी हो जाएं कि हम पॉलिसी या रेगुलेटरी साइड से हमें कोई चैलेंज ना हो अपनी ई कॉमर्स को ग्रो करने में डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट वाइज। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड टुडे। So for everyone, all the attendees, for all the attendees right now, sorry Abid, you got the next question. I'm just going to for everyone who's here, this is the link for the September 2019 e-commerce policy framework. Is that the last edition? All right, I'm going to October 2019. We'll even put it with the YouTube video, so please have a look. Abid? Acha, so it's great, it's refreshing, you know, government is actually taking action to uplift its sector. So आपने बात की women participation की, I'll take this a little bit forward कि पहले ये होता था कि you know in order to create a store आपको एक बहुत ही high priced rent पे real estate लेनी पड़ती थी, marketing करनी है तो TV, you know, radio के ऊपर आपने करना है, बड़े बड़े budgets चाहिए। online की वजह से that thing has finished, right? So जो marginalized communities थी या घर पे अगर कोई खातून है वो काम कर रही है या अगर कोई बंदा इसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसको शौक है अपना बिजनेस क्रिएट करने का, सो एक्चुअली द अपॉर्चुनिटीज आर देयर। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में किस हद तक ये चीज़ हो रही है? अगर नहीं हो रही तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को किस तरह ग्रैब किया जा सकता है? बिल्कुल। सो हमारे साथ आई थिंक कॉल पे कमर आफ्ताब साहब भी हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ एलो एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स एज वेल। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, सो बाय द वे कमर साहब भी हमारे साथ बहुत एक्टिव है हमारी ई कॉमर्स पॉलिसी पे। मैंने उनको एक चीज़ का बल्कि अभी जवाब देना है एंड ही इज वेटिंग फॉर दैट। बट इंटरेस्टिंगली ये जो अपॉर्चुनिटी आपने बताई ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सो अभी तक एक मैं और नादिया हुसैन हम डिस्कशन कर रहे थे आपके प्रोग्राम में भी और एक पहले भी कि पहले जो हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी उनका जो एक तो प्रोडक्शन कराती थी वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में जाके काम करवाया, छोटी जगहों पे खड्डे कहीं लगाए उन्होंने, छोटी छोटी खड़ियां लगाई हुई और वहां से लोगों से काम करवा रहे हैं, उनके घरों से, गांव से, डिफरेंट जगहों से। अब जब उन्होंने बेचना होता था तो वो ये स्प्रिंग सीजन में ना हमारे फेस्टिवल्स होते थे बहुत सारे छोटे छोटे हर जगहों पे, कहीं फूड फेस्टिवल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ डिफरेंट स्टॉल्स लगा के अपनी चीजें निकाल लेती थी या एग्जीबिशंस करती थी, विमेन ओनली एग्जीबिशंस होती थी, कॉफी मीटअप्स और वो उनमें। अब वो इस कोविड की वजह से कोई मीटअप्स ही नहीं हुए, तो there are inventories lying and they can't sell them and they were never online.
वो मैक्सिमम उनका कुछ लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए थे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, बट एक कस्टमर ने आपसे अगर एक दफा एक चीज ले ली है तो जरूरी नहीं उसको वो दोबारा चीज चाहिए अब, तो यू नीड टू फाइंड द न्यू ऑडियंस फॉर योर पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब वो ऑनलाइन ही नहीं है, तो दैट्स वेयर डिजिटल कम्स इन। सो उनके लिए आई वुड रिकमेंड अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी। जितने भी यंग स्टार्टअप्स हैं जो ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, और जितनी खासतौर पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाइब्रिड का स्ट्रेटजी का मेरा मतलब ये है कि आपको दो काम करने हैं ई कॉमर्स में। You need to move a box, lot of boxes of your inventory, and you need to build a brand. So B and B. You need to Box move a and box and you need to build a brand. Right. Box अगर and आप a brand. boxes, हाँ, so अगर आपने boxes ज्यादा move करने हैं, आपके पास inventory ज्यादा है, तो आपको market place पे जाना जरूरी है। Which means कि दराज पे, होम शॉपिंग पे, डिफरेंट जितनी भी बनी हुई है, बाय ऑन है, वो भी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर अनम की है, बेशुमार मार्केट प्लेसेस हैं जहां आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करके उनके थ्रू बेच सकते हैं उस मार्केट प्लेस पे। मगर उसका कुछ चैलेंज ये है कि नंबर वन, यू हैव टू बी सुपर कंपेटिटिव इन प्राइसिंग। टू, यू नीड टू हैव वेरी गुड फोटोग्राफी एंड कंटेंट, बिकॉज वहां सिर्फ अच्छी फोटोग्राफी और लोअर प्राइस पे लोग चीज ले लेते हैं। राइट। पहला इंटेंट जो इम्पल्स बाइंग है वो वहां से इस तरह से हो जाती है। और अगर आप नहीं आज बेच रहे होंगे वो जूता या वो कपड़ा या वो मग या वो खाने की चीज, तो कोई और उसी नाम से या मिलते जुलते नाम से बेच ही रहा होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ यूनिक प्रोडक्ट। तो कोई ना कोई आके बेच जाएगा और वो ले जाएगा कस्टमर, तो आपका ब्रांड नहीं वहां बिल्ड होगा, बट यू विल बी एबल टू मूव फ्यू बॉक्सेस एट अ सर्टेन मार्जिन। तो उसके पैरेलल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव योर ओन ब्रांड वेबसाइट जहां से आप ई कॉमर्स कर सकें, ताकि लोग अपना ब्रांड भी बिल्ड कर सकें ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके कुछ और फवायद भी हैं। जब आप अपनी वेबसाइट से करते हैं तो आप कस्टमर का डेटा ओन करते हैं। सो इन द न्यू प्राइवेसी रेगुलेशंस एंड जीडीपीआर एंड ऑल ऑफ दोस, कस्टमर डेटा ओनरशिप इज आल्सो समथिंग जो कि आपके पास वहां होगी। टू, आपको उसका एक और फायदा है कि आपके पास ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सारा कस्टमर्स का डेटा होगा, तो आप उनको क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हैं। यू कैन सी द पैटर्न्स, यू विल हैव योर ओन डेटा। थ्री, आप आज जो उनको चीजें बेच रहे हैं, आप उनको कल कुछ और भी बेच सकते हैं अपनी ही वेबसाइट पे, बिकॉज दे विल देन बिकम योर कस्टमर्स। और वो अगर आपको रेफरल देंगे तो वो भी आपको फायदा देता रहेगा। तो इवेंचुअली यू विल बिल्ड अ ब्रांड। सो टू इन शॉर्ट, for SMEs and women entrepreneurs and startups on e-commerce, they need to have a hybrid strategy, box and brand. तो ब्रांड में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको बिल्ड करने में, बिकॉज आपको ट्रैफिक लानी है, आपको यू नीड टू अक्वायर यूजर्स एंड ऑडियंस, उसके लिए आपको यू नीड टू मेक अ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। बट अब ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारी प्रोडक्ट फिशरी है, जिसमें आपकी अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कोई। यू कैन सेट अप योर वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ रनिंग पे पैसे देते हैं, पे एज यू ग्रो मॉडल है कि जितना आपकी प्रोडक्ट बिक जाए उसकी एक कमीशन आप दे दें, बट देयर इज नो अपफ्रंट सेटअप कॉस्ट। सो इट इज नाउ बिकम अ कमोडिटी। तो मकसद ये है कि जब आप ग्रो करें तो हम भी आपके साथ ग्रो करें एज अ टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो एसएमईज को और उन सबको टेक्नोलॉजी की सरदर्द ना हो, बल्कि वो अपने प्रोडक्ट पे, उसकी असॉर्टमेंट पे, उसकी डेवलपमेंट पे, उसकी पैकेजिंग पे, उसकी कम्युनिकेशन पे, उसकी फोटोग्राफी पे वक्त लगाएं, इन्वेस्ट करें टाइम, बल्कि रादर देन कि वो कॉपी पेस्ट ना कर रहे हो कहीं से। जनरली हमारे यहाँ ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि हम अब एक अपनी चीज की प्रोडक्ट की कॉपी जो है ना कंटेंट किसी और का कर लेते हैं। वी डोंट रियलाइज कि वो जो कंटेंट है वो आपका मार्केटिंग है, वो दैट विल बिल्ड योर स्टोरी, योर नैरेटिव, एंड विल ब्रिंग यू दैट ऑडियंस की एफिलिएशन जो आपको चाहिए, जिसको हम कहते हैं इमोशनल कनेक्ट। So people don't invest their time in that. So I think that's important. So hybrid strategy, brand and box. No matter. Right. Sorry, I was just trying to paste the updated framework. This is an issue आप please with करें. In the Zoom, meantime, I'll paste that shortly. अगर अस्फंदियार और कमर साहब आप कुछ ऐड करना चाहें, प्लीज फ्रॉम एन ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव, माशाल्लाह आप दोनों भी स्पेशली फ्रॉम अ नॉन टेक पर्सपेक्टिव इस स्पेस को समझते हैं. Yeah, feel free to probably take a couple of minutes and share your thoughts, Kamar Sahab and Asfandiar, अगर आप करना चाहें. Now since you have joined it, तो मैं इसके आपको तंग कर रहा हूँ. Thank you. Sir, शुक्रिया. Thank you, brother. It was a pleasure listening to you. और आपने सारी बातें जो कही हैं, तकरीबन सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हैं. मैं जो हूँ इस वक्त, हम लोग पाकिस्तान में तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपका वो जो पॉइंट है ना कि क्रॉस बॉर्डर स्मॉल पैकेट्स, दैट इज प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मी एंड प्रॉब्ली फॉर पाकिस्तान एज वेल. तो इसके ऊपर जो है वो जोर लगाना है हम सब ने, और इसके ऊपर आपकी एफर्ट्स तो बहुत हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही ये वाला जो हमारा एक सेक्टर है ये इस्टेब्लिश हो जाए,
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बड़ा एक जंप आएगा, और ये मेरे ख्याल है नीड ऑफ द आवर है। इसके ऊपर जितना ज़्यादा काम आप कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आपके साथ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ काम करने का मिलके। बट मैं इसलिए कमर साहब के पॉइंट इसलिए आई थिंक इट वैलिडेट्स आवर पॉइंट बिकॉज कमर साहब इज आल्सो इनटू एक्सपोर्ट, और ये ऑफ कोर्स टेक्सटाइल वाले सेक्टर जो हमारा लार्जेस्ट सेक्टर है। So I think thank you, Kamar sir, it's a very pleasant surprise to have you over, Kamar, or we'll definitely pick your brains again as well. So and I've actually I've actually planned के मैंने ILO से किसी को लाजमी बुलाना है, and I have that in the planner. So let me recommend you, आपको ILO से duo को बुलाना है, father son duo. Oh, that would be amazing. I mean, that would be amazing. Thank you so much, Kamar, for sharing your insights. Thank you. अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। Thank you, brother. Sir, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Asfandiyar is also right, brother, here if you want to add something. Last question, Abid, before. Yeah, sure. Asfandiyar wants to add something. No, actually, I just wanted to. Sorry, I'm butting in. नहीं, please, बहुत अच्छी बात है। But that's not really आप continue कर रहे हैं. I think this is. I think the crux of this is that the public-private partnership, जो collaboration चल रही है, this is critical, and I think everybody is pitching in. And I think ये जो हम लोग, this is a good opportunity, this COVID crisis and जो post COVID situation होगी, कि हम exports को भी बढ़ाएं और domestic commerce के अंदर भी काम करें. But I think एक जो critical aspect है जो कि e-commerce policy के अंदर भी mention हुआ था, but important है how to digitize the entire process, because especially when you talk about e-commerce, तो यहाँ पे ज़ाहिर है सब लोग जब बात करते हैं तो COD और इन चीज़ों की बात करते हैं. I think we need to get into the root cause of why we are so dependent on COD, cash on delivery, I mean, and how to digitize the entire payment infrastructure. And I think that's a critical area, and the critical bottlenecks that will face us, will be facing over the years, and we need to really focus on that in the whole ecosystem. But just wanted to add this, but thank you, Badr, and thank you everybody. And I think नहीं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का टाइम का, तो and appreciate कि आप सब हम सब मिलके इस पे काम करें. I think that's really important. And again, once again, wanted to appreciate कि Ministry of Commerce ने हम सबको ये opportunity दी है कि हम मिलके इस पे सब इस narrative पे और policy के ऊपर, it's a very collaborative work happening, जिस तरह भी public-private partnership की बात की as a public-private consultative process, it's going very well. Sorry, Numair, आप please add करना चाहते हो और कुछ? नहीं बिल्कुल, I was just agreeing that is definitely digital payments is an area where we are still lagging, and that is that one last thing that's holding us back from really going boom with this whole thing. वैसे इस पे sorry so add कर दूं just एक a चीज, last question before and then we have a little sorry, surprise. Payments पे comment add कर दूं. जी please. I think एक perception जो ये है ना कि PayPal के बगैर शायद e-commerce नहीं हो सकता पाकिस्तान में, जरा थोड़ा सा it's not as true. तो बहुत सारे लोग इस वक्त e-commerce कर रहे हैं. Quickly speaking, just in the interest of everyone's audience interest, इस वक्त पाकिस्तान की e-commerce जो स्टेट बैंक की 2018 की एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेड स्टेट बैंक ने कोट की है फिगर 2018 की, वो 600 to 700 मिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान की ई-कॉमर्स का मार्केट साइज था 2018 में. आई गेस कि मेरा हिसाब पर्सनली सेफली आई कैन एस्टिमेट कि पाकिस्तान ने बिलियन डॉलर्स की ई-कॉमर्स 2019 में कर ली थी डोमेस्टिक. सो वी हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. जैसा मैंने बताया था, दिस इज स्टिल लेस देन 1% ऑफ द टोटल रिटेल. Less than 1% of the total retail. So we have a huge opportunity to grow. तो मगर उसके बावजूद अगर $1 बिलियन की हमने ई-कॉमर्स कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि पेपैल के बगैर सब कुछ हो रहा है. तो वो SMEs या वो स्टार्टअप्स जो वेट कर रहे हैं कि पेपैल आएगा या कोई मैजिक वॉन्ड आएगा और कोई आके हमारे लिए सारा कुछ कर देगा, वो नहीं होना. You have to take an effort. इस वक्त this is actually a myth. This is actually a myth कि अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा. क्रॉस बॉर्डर के लिए हमें कुछ पेमेंट्स के लिए जरूरी है कुछ चीजों के लिए, बट डोमेस्टिक कॉमर्स के लिए नो. यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी कैन सर्टेनली रन विदाउट इट. हाँ, चैलेंजेस हैं, सीओडी के अपने चैलेंजेस हैं, क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट गेटवेज के चैलेंजेस हैं, बट स्टिल यू कैन रन योर बिजनेस, यू कैन स्केल इट अप टू अ रीजनेबल लेवल. Speaking of growing, bootstrap is often used buzzword. What is it, first of all, and how does bootstrapping a company compare to an investment funding geared model, and which do you think makes more sense right now? And after this question, we have a surprise for you. So
मेरा नैरेटिव इस पे जरा सा डिफरेंट है. Generally, what I see at incubators and accelerator, and with all due respect, what I see is कि हमारे startups अभी ideation stage पे ही ना investment raise करना चाहते हैं. I think that's a little early. I'll be very honest. मेरे हिसाब से अपने idea को थोड़ी देर bootstrap करना जरूरी है, ताकि आप में flexibility भी रहे. आपको जब आपके पास foreign external investor आएगा, तो वो आपसे एक certain process चाहेगा follow हो, एक certain road map follow, और flexibility जरा कम हो जाएगी, because आपने उसको commit किया होगा कि मैं आपको इतने महीनों में इतनी sale या इतना growth या progress दिखाऊंगा, which is not at all times possible in terms of as a startup. So I strongly am a believer कि शुरू में bootstrap करना चाहिए. अपने आप को majority ideas किए जा सकते हैं, except for very few ideas जिनके लिए बहुत शुरू में capex heavy ideas हैं, तो वहाँ आपको investment चाहिए. जहाँ नहीं चाहिए वहाँ I think छोटे स्केल पे शुरू करके प्रोडक्ट मार्केट फिट लाके सर्टेन कस्टमर्स, पेइंग कस्टमर्स लाके प्रोडक्ट को रन करके फॉर अ व्हाइल आप ये प्रूव कर दें कि ये एक रनिंग मॉडल है, चल सकता है, छोटे स्केल पे मैं चला रहा हूं, अब मैं या चला रही हूं, अब मुझे इतने पैसे चाहिए कि मैं इसको हॉकी स्टिक ग्रोथ में ले जाऊं. बिफोर दैट यू नीड टू इन्वेस्ट योर ओन टाइम एंड एफर्ट टू मेक इट अ सक्सेस. और इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो मैं देखता हूं कि स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेशियो है पोस्ट इन्वेस्टमेंट वो इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, because the focus is different. Yes, तो वो पैसे लेना जरूरी नहीं है, कई चीजें पैसों से नहीं होती हैं, आपके पैशन से होती हैं. वो एक्सेल की शीट में नहीं फिट होंगी. वो you need to pivot, you need to experiment, you need to do lots of experiments and then try to get that done and find the right mix and the right formula, और जो जिसको हम सीक्रेट रेसिपी कहते हैं. वो अगर तो ऐसा होता ना कि हर कोई बिजनेस प्लान कॉपी करता है एक्सेल का और काम चला लेता, तो फिर तो आज किसी को नौकरी की जरूरत ही ना होती. स्पेशली इन पाकिस्तान एज वेल के इन्वेस्टमेंट आर्म जो है इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम इतना ग्रो नहीं किया, नेसेंट स्टेजेस पे. सो इट्स एक्चुअली अ नेसेसिटी एज वेल के यू हैव टू यू नो bootstrap rather than you know seeking investments early on. So but people may have different opinion. मेरा ये opinion है, मेरा personal opinion है. But for all the startups listening right now, there it is, and I also agree with this, that you've got to go through the trials initially, do it small, make some mistakes. You might end up pivoting a little bit in that process, fine tune your overall offering, and then you'll start going big. You don't need to think about investors so early on, especially right now. It's going to be a little difficult finding investment. Bootstrap, work on your idea, validate it, and then you'll find that growth will just come. You won't be able to stop it. All right. Achha. So are we up for that surprise segment, Nomer? Surprise segment begins now. Achha. So brother, surprise segment. So surprise segment is a rapid fire session. We'll be asking you. भूल गया वो नोमेर ने मुझसे पूछा था मेरे siblings के बारे में. So I have a brother and a sister. Sorry, छोटी अभी याद आया. Yes. Sorry. So I'll be saying a word, a line, और जो आपके ज़हन में आता है पॉप अप करता है, आपने उसी वक्त बोलना है. ठीक हो गया? I can say pass. No, you can't say pass. So okay, starting now. Best book. I actually don't read books. I just read Quran. Sorry, I don't read any other books. Best movie. Best movie. I think it was. I'm forgetting the name. वो मैं बहुत कम देखता हूँ movies. But it was something grow. TV show बता दे. हाँ, TV show मैं आजकल देख रहा हूँ. I'm watching Suits. अभी मैंने Money Heist देखा. Yeah. My favorite. One of my favorites. I'm watching Money Heist right now. Great. I enjoyed both. Yeah. Favorite food. Okay. Favorite food. Anything halal. I love all types of food. I'm fine. Okay. Most interesting person you follow on Twitter. Interesting. I can't recall मैं किसी को specifically follow करता हूँ. Not really. I'll be very honest. Okay. Not really anyone specific. I do follow. Not Donald Trump. नहीं. Politicians को तो मैं बिल्कुल नहीं करता. I'll be very honest. अच्छा. Certainly अगर आप singles देखें तो I would अगर आप देखें तो very honestly from competitive perspective I do follow Shopify these days. Yeah. Great. Right. Achha, failure is? Oh, just an opportunity to try again. Behtareen. If I was 25 again, I will? Again, go with the flow. Right.
My best mistake was, not the worst mistake, the best mistake was? The best mistake was to not go and join Dell when I had the opportunity to do. जब मैं Google में जा रहा था तो Dell और Google दोनों से offers थी. So I was just thinking कि कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैंने ASUS में काम किया हुआ था. So I thought कि हार्डवेयर में समझता हूँ शायद Dell में बेहतर काम करूँगा. तब मैंने कहा Google में सर्च में मैं क्या करूँगा, but I never knew कि Google में क्या कुछ हो सकता था. तो yeah, I think Zabardast. A leader is as good as his skill to keep his team motivated at all times and accept wherever he is wrong as well, and work with the team. It's more of a team play. So leadership is just to bring people on the same page together. I think that's important. Great. That's nice. I am afraid of actually not COVID. नहीं वो वक्त मुकर्रर है, उस पे मुझे कोई टेंशन नहीं है वो अब डर भी लोगों का खत्म होता जा रहा है आहिस्ता वैसे भी नेवर क्योंकि मैं बहुत सारे बुरे हालात में कराची भी गया हूँ, हर जगह कहीं भी जाता हूँ मैं. I'm not scared. I think वो वक्त मुकर्रर है. Faith is everything. अच्छा, the biggest lesson my mentor has taught me is? हाँ, दो हैं. One, ability is poor man's wealth. Ability is poor man's wealth. कोई नहीं चुरा सकता आपसे आपकी ability. You can lose everything, but you can't lose your ability. Two, the ability to unlearn and relearn. I think these were the two things which really helped me. The ability to unlearn and relearn. I think हम लोग पाकिस्तान में जो हम अभी पहले भी बात करते हैं SMEs, we don't unlearn and relearn. हम कहते हैं जो हम आबाओ अजदाद से हमने सीखा है बस वही फाइनल है, वही हरफे आकर है, बस वही तरीका ठीक है. आई थिंक मैं उसको डिसएग्री नहीं कर रहा, उनकी रिस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स मेरे भी बड़े थे, मगर आई थिंक वी नीड टू अडैप्ट एंड वी नीड टू चेंज एंड वी नीड टू आई थिंक इम्प्रूव आवरसेल्व्स बाय द डे. सो आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अनलर्न एंड रीलर्न करना जरूरी है. With these pearls of wisdom, I believe we'll go move forward to our Q&A session. Numair, can you ask our first question? What is the future of export companies post-COVID, and how will they come back? Actually, this was asked? Now, okay. Who asked this? So Maria is asking, do you think if you had been abroad, your growth would have multiplied with greater exposure? Oh, personally, मेरे लिए that's actually very good question. So एक और important चीज, I think you need to define कि मेरी success की definition क्या है. So अगर मैं बहुत ज़्यादा उसको डॉलर वैल्यू में देखूं तो शायद राइट मारिया कि मैं बाहर जाता और मैं शायद ज़्यादा डॉलर कमा लेता, तो शायद वो एक सक्सेस का अगर एक वो मेरा मैट्रिक होता तो बेहतर होता. बट मेरा सक्सेस का मैट्रिक जरा डिफरेंट था. सो माय मदर इज विद मी हियर इन पाकिस्तान. सो मेरा सक्सेस फैक्ट मेरा जो था डेफिनेशन ये थी कि मैं फैमिली और वर्क को जो है सही तरह बैलेंस रख सकूं और सबके साथ रह सकूं. तो मेरी प्रेफरेंस इज नॉट जस्ट द डॉलर वैल्यू, इट इज एक्चुअली द पीस ऑफ माइंड. और उसमें मैंने एक और कोटेशन और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, दैट मनी कैन बाय यू अ बेड बट नॉट स्लीप. और सोना जरूरी है. तो इसलिए यू नीड, सो दैट वाज नॉट एवर अ प्रायोरिटी. आई न्यू कि मैं गूगल में या फेसबुक में या किसी के साथ भी बाहर भी काम कर सकता था. नेवर इवन एक्सप्लोर्ड दैट, नेवर. Okay, so we have Ashar Saeed, and he's asking, he has another important question. He says export of hardware, PCBs, electronic equipment is quite a challenge. Currently, are there any provisions being made to ease this as well? There is a decent market in the Middle East which can be easily captured if this is allowed. I think this is a good idea. So मेरी एक जो बहुत सारे इस तरह के पब्लिक लेवल चैलेंजेस हैं कि पब्लिक सेक्टर से हमें कोई रेगुलेशंस का इशू है, कुछ है, तो आई थिंक आई कैन सर्टनली गाइड कि हम उसको कैसे असिस्ट कर सकते हैं. आई थिंक वी कैन टेक इट अप फ्रॉम पाशा पर्सपेक्टिव कि हम रेलेवेंट अथॉरिटीज को प्रॉपर केस बिल्ड करके प्रेजेंट किया जाए. तो आई एम श्योर देयर आर पीपल हु विल गिव एयर्स टू दैट कि हम कैसे हम मार्केट अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं, जिससे हमने ई कॉमर्स में भी यही किया है. आई थिंक वी कैन सर्टनली डू दैट. थोड़ी सी लॉबिंग और एडवोकेसी करने की जरूरत है, तो वी कैन प्रॉब्ली गेट दीज चेंजेस डन. इस वक्त प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है. I think there's an opportunity to get things done. So अगर opportunity को हम map कर सकें, document कर सकें, growth को दिखा सकें potentially, so I think we can go to the right people who can bring about those changes. Okay, we've got Arsalan Javed here. He's saying, hi, this is Arsalan Javed. I run a digital marketing and technology services company. My question for Badr is, how do
how does one change, increase or decrease the pricing for one's technology marketing services during or post-COVID? Should the prices remain the same? So Arsalan, good question. I'm probably not a specialist in that sense, but yeah, experience की basis से मेरा ये learning ये है कि आप pricing market के हिसाब से तो अपने आप को benchmark करना चाहते हैं जरूर कि market में इस वक्त क्या demand या need या वो है चल रहा trend, but आपकी pricing आपकी अपने resources की costing की basis पे होनी जरूरी है. So हो सकता है कि मेरी agency की pricing जो एवरेज एक एजेंसी की प्राइसिंग से फर्क हो उससे ज्यादा हो या कम हो, डजंट रियली मैटर. मैंने अपनी कॉस्ट कवर करनी है और उसके ऊपर एक सर्टेन मार्जिन बनाना है एज अ कमर्शियल एंटिटी. हो सकता है मैं वो मार्जिन को कभी कभी अपने ना लूं और मैं सिर्फ कॉस्ट को कवर करना चाहूं कि स्ट्रेटेजिक अकाउंट है, टाइम्स चैलेंजिंग है, तो एटलीस्ट पैसे ना बने मगर काम चलता रहे, फ्लो में रहे. बट कॉस्टिंग जो है वो आपकी जो प्राइसिंग है वो आपकी कॉस्टिंग पे डिपेंडेंट है, और कॉस्टिंग को सही तरह समझने के लिए आपको रिसोर्स की कंजम्पशन समझने की जरूरत है कि मैं जब एक काम डिलीवर करता हूं तो उसमें मेरे कौन कौन से रिसोर्सेज कितने कितने घंटे या कितने कितने मिनट इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी एवरेज मेरी क्या बननी चाहिए. सो अगर आपने कॉस्टिंग सही नहीं की होगी तो आप प्राइसिंग सही नहीं कर पाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉस्ट्स वेरी वेल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड देन यू नीड टू प्राइस इट. और अगर आप इसमें गलती नहीं करेंगे तो आप डिफेंड भी आराम से कर सकेंगे एंड यू, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर तरह के कस्टमर को सर्व कर सकें. हो सकता है कुछ कस्टमर्स कहें कि आप मेरे लिए महंगे हैं, बट दैट्स फाइन. You do not need to go below your cost unless you take it as a strategic decision कि कंपनी के लिए important है. You should say कि ठीक है आप कहीं और से करा लें जहां शायद आपको प्राइस कम मिल जाए. मेरी कॉस्टिंग ये है बिकॉज मैं आपको लेवल ऑफ सर्विस और लेवल ऑफ क्वालिटी ये दे रहा हूँ. सो इट इज लाइक एज अ एनालॉजी, इट इज लाइक सेलिंग सुजुकी ऑल्टो एंड मर्सिडीज. दोनों में गाड़ियों में एसी भी है, टायर भी हैं, शॉक अब्जॉर्बर भी हैं, स्पीडोमीटर भी है, स्टीयरिंग भी है, रेयर व्यू मिरर्स भी हैं, सब कुछ है. फंडामेंटली दे आर सिमिलर technically, but there you can see the difference. There are qualitative differences कि उसकी quality, उसकी fund, उसकी जो है वो made, उसकी infrastructure, सारा कुछ बहुत फर्क है. And you can't do कि मैं एक Mercedes का engine निकाल के ऑल्टो में लगाऊंगा तो शायद मैं ज्यादा प्राइस ग्रैब कर पाऊंगा. You need to have the whole ecosystem which complements and supplements that price. तो I think अगर आप ऑल्टो बेचना चाह रहे हैं तो आप अपनी प्राइसिंग उसके हिसाब से रखें और उसके कस्टमर्स को देखें उसका सेगमेंट क्या है. अगर आप सही सेगमेंट को टारगेट करेंगे तो दे वुड नॉट क्वेश्चन टू मच ऑफ प्राइसिंग. अगर मैं मर्सिडीज बेच रहा हूँ और मैं उनके ऑल्टो के यूजर को बेचना शुरू कर दूंगा तो ऑफ कोर्स वो ये कहेंगे बड़ी महंगी गाड़ी है जी, मैं सस्ती लेना चाहता हूँ. तो ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड द राइट ऑडियंस फॉर योर राइट प्राइसिंग. तो आई थिंक वो मैच मेक करने की जरूरत है, बट इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर रिसोर्स कॉस्टिंग and a certain margin and of course the forecasting. So Shabir Hussain has another interesting question. He's asking that many young entrepreneurs have good ideas, but they don't have platform to start. Second, they can't come out of their comfort zone. Sorry आबिद, मैं एक चीज लास्ट वाले में ऐड करना चाहूंगा. इसको हम जनरली कहते हैं टाइम एंड एफर्ट कॉस्टिंग. आप उसकी बेसिस पे करेंगे अपने रिसोर्सेज कितने किए. सो जस्ट दैट्स अ टर्म यू माइट वांट टू सर्च ऑनलाइन. आपको उसकी बेसिस पे बहुत सारे और रिसोर्सेज मिल जाएंगे. सॉरी आप दोबारा बताइएगा. जी, so he's asking कि यार ज़्यादातर लोग जो है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते to start up. They have ideas, but you know there is that thing कि whether it will work, job है, पैसे आ रहे हैं. So you know how to come out of your comfort zone. You just gotta do it. Yeah, it's a leap of faith. It's a leap of faith. Also बहुत सारे, that's actually very true. मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अच्छे लेवल पे वेल सेटल्ड है माशाल्लाह, और वो कुछ करना चाहते हैं. दे हैव ग्रेट आइडियाज, दे नो द इकोसिस्टम वेरी वेल, दे नो कि क्या काम कैसे हो रहा है, बट दे कांट टेक दैट लीप ऑफ फेथ. आई थिंक उसका एक और आंसर ये भी है कि द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज, बिकॉज शुरू में एज के अर्ली स्टेजेस में लाइबिलिटीज कम होती हैं. अगर आप इस स्टेज पे आ गए कि आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको अपनी लाइबिलिटीज को भी कंसिडरेशन में डालना है. तो ऑफ कोर्स ये चेंज को एक्सेप्ट करना या एक रिस्क लेना जो है, रिस्क एपेटाइट आपकी कम हो जाती है. बट शुरू में अर्ली स्टेज पे आप ये रिस्क एपेटाइट आपकी ज्यादा होती है, आप फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं. तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये जितनी जल्दी ये रिस्क लेना चाहें ले लें. मगर मेरी एक और इसमें राय भी होती है कि एकदम ग्रेजुएट करते ही अपना काम शुरू ना करें, थोड़ी देर कहीं और एक्सपीरियंस भी ले लें. तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करके मिलता है वो भी बहुत जरूरी है. एंड देन यू कैन सर्टनली डू योर ओन जॉब और योर ओन entrepreneurial initiative at a better with a better insight.
Exactly. I mean, the goal is doing great things, and you can even work for a company for some time, do great things Correct. with them, keep that idea festering in your mind, keep growing what it could be, Yes. and then eventually you come to it, you know. So हमने never ब्रेमर से give शुरू up. किया, हमने तीनों ने, फाउंडर्स ने, हम तीनों दिन को अपनी जॉब्स करते थे और रात को हम बैठ के अपना ब्रेमर शुरू किया. So for a long time, it operated out of my bedroom, because we three used to sit there and work there. तो हम तीनों रातों को बैठते थे. So we invested our And private personal family times into starting Bramers. तब कोई incubator, accelerator, co-working spaces, coffee shops कुछ नहीं थे back in 2006. So it was either us in the day at job और शाम में हमें बैठ के करते थे. So you need to make that sacrifice, but Right. yes. And that's when it really means a lot, like we discussed earlier as well. When you go through the tough times, you know, then you really value it. And when you bootstrap. Another really relevant question to now, Badr, that, you know, we get asked this often as well. The future of the Urdu language, you know, on digital and social mediums. This is asked by Danish Qureshi here. And what do you see is the future of social content, knowing that, you know, major population of Pakistan still cannot understand, read and write English. And like you pointed out before, we don't really have those tools yet to cater. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो थोड़ा सा उर्दू का डिजिटल का आपको बैकग्राउंड ये बता दूं कि अगर आप नोटिस करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी देर से उर्दू की ऑप्शन आती है कि आप उसमें उर्दू लिख सकते हैं. वो फॉन्ट इतना अच्छा मजेदार नहीं है, लेजिबल नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैड इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. और उस पर जो काम किया था वो हमारे फास्ट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं लाहौर से, उन्होंने किया था. अब वो यूईटी में अल ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट में उसको हेड करते हैं, ही इज देयर. तो उन्होंने उर्दू के फॉन्ट पे बहुत काम किया था और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए उर्दू का फॉन्ट डेवलप किया था बैक इन द डे फॉर विंडोज, और वहां से फिर वो फॉन्ट यूज होता रहा. बट अभी भी अगर आप नोटिस करें, अब जाके जरा सा फॉन्ट बेहतर हुआ है लेजिबली ऑन द मोबाइल फोन, बट डेस्कटॉप के ऊपर इवन कीबोर्ड इंस्टॉल करना उर्दू का और उसको यूज करना इज नॉट कन्वीनियंट. For designing, I do a lot of designing as well, and you can do very little typography play with the Urdu language. Exactly. तो वो भी एक चैलेंज है. तो आई थिंक वहाँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, बट अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज इन इटसेल्फ भी नहीं इम्प्रूव किया, ग्रो किया. तो हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं सरकारी, आई थिंक फेडरल एंड प्रोविंशियल, जिनका काम सिर्फ उर्दू की जुबान की तरजीह करना है, उसको बढ़ाना है. बट आई थिंक वो भी बहुत ओल्ड स्कूल है. अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी ट्रेडिशनल एंड दे हैवंट रियली अडॉप्टेड द डिजिटल इकोसिस्टम एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ नहीं हुई अभी ज्यादा. तो मेरे ख्याल में उन सबको लेकर आना इस पे जरूरी है. एक बात. दूसरी बात, एक फायदा अब ये हुआ है वीडियो की वजह से, अगर आप यूट्यूब पे देखें बहुत सारे लोकल कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो गया. अर्ली डेज में सिर्फ कोक स्टूडियो वाज द ओनली लोकल कंटेंट इन द अर्ली डेज. अब आप देखें एकदम प्रोलिफरेशन बहुत हो गई है लोकल उर्दू कंटेंट की. एंड गूगल और यूट्यूब और फेसबुक के जो अब एल्गोरिथम्स आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो ऑटो आपके ट्रांसलेशन कर रहे हैं और आपकी टाइपिंग कर रहे हैं, they are really there. But there is an opportunity for startups to explore जो टेक वाले स्टार्टअप्स हैं कि वो उर्दू को बेहतर उसकी टाइपोग्राफी डेवलप करें. बाय द वे, उर्दू का फॉन्ट डेवलप करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है. इसमें एक इशू ये है कि जो हमारा फॉन्ट का स्मॉलेस्ट साइज भी बनता है अच्छी उसमें कैलीग्राफी में, वो 14 MB की फाइल बनती है और उसको ब्राउजर में प्री लोड करना पड़ता है. देयर इज अ फुल साइंस टू इट एंड देयर इज अ बिट ऑफ एन इशू. अरेबिक फॉन्ट बहुत छोटा बन गया है वो, क्योंकि उसमें थोड़े कैरेक्टर्स हैं, और बाकी सब उर्दू इज यूनिक बिकॉज हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं. यानी काफ और गाफ और बे और अलिफ को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं मिक्स करके और कॉम्बिनेशंस बना के. तो उसके लिए काफी आपको स्पेसिफिक काम करने की जरूरत है और इमेजरी में. तो वो तो देयर इज अ फुल साइंस आई थिंक इसके अंदर जिस पे काम किया जा सकता है. बट गूगल ने काफी एफर्ट किया है इस पे. गूगल के टाइम पे हमने इसमें उर्दू का फॉन्ट एक डेवलप करने किया था, जो कि अब गूगल फॉन्ट्स पे भी अवेलेबल है, जो कि हमने क्रोम में प्री एम्बेड भी किया था, ताकि आप उर्दू की वेबसाइट्स जो हैं वो अच्छी तरह बीबीसी उर्दू और जो बाकी लोकल उर्दू की वेबसाइट्स हैं उन पे ये फॉन्ट उन्होंने यूज किया है इस तरह से. So I mean, there is opportunity in this domain जो कि उर्दू कंटेंट पे काम कर रहे हैं for startups. Opportunity हर चीज में. There is room for improvement. There's always room for improvement for even a better Zoom service, I'm sure. Agreed. I agree. There's everything. So we have Irfan Abdullah and he has a question. The Urdu audience is definitely there. Yeah. So Irfan Abdullah is asking, is anything being done on the escrow accounts? Without that, it is difficult to handle the mistrust between buyer and sellers.
सो एस्क्रो की जो जरूरत है वो आपको सीओडी में ज्यादा है, बिकॉज वहाँ प्री पेमेंट नहीं हो रही, एंड इट इज अ वेरी बिग पेन पॉइंट, जैसे अस्फंदियार ने भी पहले हाईलाइट किया. दिस इज अ बिग चैलेंज, और इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट्स की प्रोलिफरेशन ज्यादा चाहिए. बट उस पर एक चीज ऐड कर दूं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 20% आबादी के पास बैंक अकाउंट है, सिर्फ 20% के पास, विच मीन्स कि 80% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, विच मीन्स कि अभी आपको पहले उनको बैंकिंग नेट में लेकर आना है, और फिर आपने उनको, और उसको अभी तक वो ट्रेडिशनल बैंकिंग नेट में तो नहीं आए, अब आप उनको मोबाइल बैंक के नेट में ला सकते हैं, या मोबाइल बैंकिंग में वॉलेट्स में, या मोबाइल वॉलेट्स में, मगर उसके लिए आपको उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है. द चैलेंज इज कि ये हम स्टेट बैंक के साथ भी ये बात करते हैं कि अभी भी कैश को इस्तेमाल करना सस्ता है और ऑनलाइन पेमेंट को यूज करना महंगा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आज नुमैर को 100 रुपए ट्रांसफर करूं एटीएम से अपने इनके अकाउंट में, तो मेरे वो सर्टन एक एफईडी टैक्स कटेगा. फिर नुमैर अगर आबिद आपको ट्रांसफर करेंगे तो उनका एफईडी कटेगा. वो अस्फंदियार को भेजेंगे, फसी को भेजेंगे, कमर साहब को भेजेंगे, शहरिया, हम 4-5 लोग ही अगर आपस में वो 100 रुपए को ट्रांसफर करना शुरू करेंगे तो एंड पे 100 रुपए नहीं बचेंगे, वो शायद 80 या 85 या कुछ रुपए बचेंगे. मगर मैं 100 रुपए कैश में अगर नुमैर को दूं और वो पास ऑन करता रहूं उसी ट्रेल पे, वो एंड पे 100 रुपए रहेंगे. तो कैश इज स्टिल cheaper than digital payments in Pakistan, and hence adoption of digital is not there. दूसरी रीजन adoption ना होने की ये है कि there is a fear factor कि मैं अगर अपना डिजिटाइज हो गया, मैंने बैंकिंग नेट में आ गया, तो इसका मतलब है मैं टैक्स नेट में भी आ गया. तो hence people are reluctant to digitize their payments कि जी वो बेहतर कैश पे चलते रहो ताकि डॉक्यूमेंट ही ना हो, ताकि टैक्स वालों को पता ही ना चले. तो वो एक फेयर फैक्टर है. तो हमारी टैक्स अथॉरिटीज को अपना नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है कि वो एज अ पुलिसमैन ना आए, बल्कि एज अ इनकरेजिंग सपोर्टिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आए, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो और लोगों को पता हो कि मैं अगर मैं कुछ करूंगा भी तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे सपोर्ट किया जाएगा कि कम से कम मैं डिजिटाइज हो गया हूँ, मैं डॉक्यूमेंट हो गया हूँ, अब मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ. आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट इकोसिस्टम नैरेटिव. जी. एंड थर्ड, देयर इज एन इशू कि परसेप्शन ये है कि जो बैंकिंग है वो रिलीजियसली कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारे बिलीफ्स के साथ. जो मेजॉरिटी में बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं जी उनके परसेप्शन बिल्कुल फर्क है. सो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग अबाउट दैट इम्प्रूवमेंट एज वेल. उसमें शायद मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ और स्टेट बैंक को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और बहुत सारे और इंटरडिसिप्लिनरी या इंटर मिनिस्टेरियल इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस ला सकें कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है, और उनकी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको अब हम कोलैबोरेटिव तरीके से, इंटरेक्टिव तरीके से उनके सवालों के जवाब दे के, उनको समझा के क्लैरिफाई कर सकें. तो ये 3 रीजन है इसकी वजह से मेरे हिसाब से हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स की जो पेनिट्रेशन है वो थोड़ी है, एंड हेंस यू नीड दैट एस्क्रो थिंग ऑन फॉर कैश ऑन डिलीवरी. क्योंकि मैंने अगर एक कस्टम चीज 10,000 रुपए किसी को बना के भेजी, तो अब अगर उसने अपने डोर स्टेप पे कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तो मेरा तो मर्चेंट का तो रिस्क बहुत हाई हो गया. वो चीज वापस आएगी, उसकी वापस आने की भी कॉस्ट है, जाने की भी कॉस्ट थी, अब मुझे वो वापस भी लिए, अब मैंने वो कस्टम उसके लिए चीज बनाई थी, तो वो ज़ाहिर है मैं किसी और को बेच भी नहीं सकूंगा. तो देयर इज अ ह्यूज रिस्क फॉर अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट टू बी सेंट ऑन कैश ऑन डिलीवरी. तो आई थिंक इसके ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं, बट रादर देन कि आप किसी और का वेट करें, अगर आप में से कोई स्टार्टअप है तो यू माइट वांट टू इनिशिएट दैट प्रोसेस एज वेल. यू माइट वांट टू बिकम एन इंटरमीडियरी जो कि सर्विस प्रोवाइडर बन सके. बट आई थिंक इसमें स्टेट बैंक और कुछ और लोगों की रेगुलेशंस और उनको भी देखना पड़ेगा कि इसकी पब्लिक पॉलिसी की वाली साइड से रेगुलेटरी एंगल क्या है. बट सर्टेनली नीडेड, एंड आई थिंक पीपल विल यूज इट अगर आप ये यूज करेंगे. So we're going to take one more question, and then we're going to be ending the session. We've gone 18-20 minutes up. Thank you everyone for joining us today. So this last question is from, and it's very interesting, this one, it's from Adil Hassan Fori. And this is something that, Badr, you've mentioned in some of your other talks as well about the RAS referral model, affiliate models. So the question is that should small homepreneurs build their own brands and websites, box and brand, or should they get on e-commerce platforms like Fori or the RAS or the like to bring their businesses to online customers online? I think they need to do both. They are not mutually exclusive. You need to have a hybrid strategy. I think मैंने पहले भी यही जिक्र किया कि हाइब्रिड स्ट्रेटजी की जरूरत है. हमें ये नहीं चाहिए कि हमें खाली ब्रांड बिल्ड करें या खाली मार्केट प्लेसेस पे जाएं.
और बॉक्स मूव करें, आई थिंक दोनों की जरूरत है. हमें कुछ बॉक्सेस के वॉल्यूम भी मूव करना होता है ताकि बिजनेस फीजिबल भी रहे, मगर साथ साथ ब्रांड भी बिल्ड करना है कि ये ना हो कि कल को मार्केट प्लेस में मेरा कोई कंपेटिटर आए तो मैं आगे बेच ना सकूं और फिर मेरा ब्रांड भी ना बना और लोगों को पता भी ना हो. तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स अभी हर्ट हो रही है वो इसलिए ज्यादा हर्ट हो रही है कि हमारा ब्रांड नोन नहीं है कहीं भी. तो जो जो जिन ब्रांड्स को हम बेचते थे वो ब्रांड्स अब चैलेंज में चले गए हैं. तो हमारी सप्लाईज जो है वहाँ चैलेंजिंग हो गई हैं क्योंकि अब हमारे बायर्स कम हो गए हैं B2B में. तो हम क्योंकि हमने B2C ब्रांड नहीं बिल्ड किया था. तो आई थिंक कमिंग फ्रॉम दैट लर्निंग आई थिंक वी नीड टू बिल्ड ब्रांड्स इन एडिशन टू मूविंग बॉक्सेस एज वेल, ताकि हम दोनों तरफ डाइवर्सिफाइड भी रहें कि अगर कल को ब्रांड का कोई चैलेंज आए तो हम बॉक्स मूविंग को भी लेवरेज कर सकें. अगर बॉक्स मूविंग पे चैलेंज आए तो हम ब्रांड को लेवरेज कर सकें. आई थिंक इट विल रिमेन साइक्लिकल. कभी कभी ब्रांड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा होगा और कभी कभी बॉक्स मूविंग वुड बी मोर फीजिबल. फॉर एग्जांपल हो सकता है दराज पे आपको या किसी भी मार्केट प्लेस पे हो सकता है वो किसी क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर से डील भी कर लें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके कस्टमर्स को अगर आप पिज्जा बेचने वाले हैं, या 20% डिस्काउंट. हो सकता है वो आपको आपकी वेबसाइट पे ना ये डील दें, आपकी ब्रांड वेबसाइट पे, बिकॉज वहाँ वॉल्यूम वो नहीं होगा, बट हो सकता है किसी मार्केट प्लेस को दे दें. तो उसको लेवरेज कर लेना जरूरी है ऑफ कोर्स. सो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी. कुछ लोगों के लिए ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कुछ लोगों के लिए बॉक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो उसका राइट मिक्स जो है it may vary. There is no one size fit all answer to it, but I think दोनों चीजों को leverage करना जरूरी है. Great answer. I think that's the right brands answer. miss कर जाते हैं. SMEs, sorry आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. जनरली SMEs मिस कर जाते हैं ब्रांड बिल्ड करना. शुरू में उनको लगता है बॉक्स मूव करो, ये तो बड़ा अच्छा काम है, फटाफट है, आसान है, डब्बा निकालो और आगे खुद ही पैसे लो और आगे. बट वो उनको जब ब्रेक लगती है ना, वो जब मौत नजर आती है तो फिर बुखार एक्सेप्ट करना लेट हो चुका होता है. तब आप ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज इट्स टू लेट, एंड हेंस दे हैव टू शट देयर शॉप डाउन only because कि उन्होंने ब्रांड नहीं कभी बिल्ड किया, and they are just another box mover in the market, and there are now tons of other box movers who are better in pricing and servicing, and hence people prefer them and not you. So I think being a branding guy myself, I consider that very important. And even here at the NIC, we make sure to take our startups through a curriculum that supports them in learning all these things as they go through that year of incubation, and they see the importance of the brand and those funnels being created early on. Speaking of which, any startups listening right now, we are open for cohort 8, which is our cohort for incubation. The deadline is the end of May. So please visit our website. There's a link on the top right for getting incubated. Click on Step Up. It's nic.pk, pakistan.pk/cohort 8. Before we wind up, we've got Fussy here. Anyone else from the guests, would you like to say something? Yeah, just thank you so much, Badr. I believe it's always a delight listening to you. Very nice insights, lots आज of मैं एक चीज मिस opportunities. कर रहा हूँ फसी के साथ, शीशा नहीं हो रहा हमारा. अच्छा, ये रिकॉर्डेड सेशन है, वरना चले खैर है. मैं वो क्या कहते हैं, मेरी वीडियो ऑफ है, मुझे वीडियो ऑन करने की इजाजत नहीं है, वरना मैं आपको दिखा सकता हूं. वरना हम आपकी बोटा भी कर रहे हैं. वो तो नहीं पहनी, लेकिन आपको ये दिखा सकता हूँ मैं, अलबत्ता अगर तो वीडियो ऑन कर. नहीं बिल्कुल. सॉरी, दैट वाज जस्ट अ पासिंग रिमार्क. अच्छा, वो वैसे would love to do that virtual happy hour with you sometime. बिल्कुल, इंशाल्लाह. But thank you so much. I believe I always say this to lots of people, startups as well, that any problem presents lots of opportunities. This is a problem for many and hence an opportunity for many. It has brought many opportunities. मुझे अभी आपने जब बात की localized content की, I remember the discussion we had when YouTube was banned. If you remember those days, I guess 8 years ago, Badr, when we met and we were trying to do something when you were in Google. So it's nice to see the local content. हाँ, local content बहुत ज़्यादा अब आ रहा है और बहुत ज़रूरी है. और मेरे ख्याल में सिर्फ आपने जो उर्दू फॉन्ट की बात की और किसी ने भी उर्दू का कीबोर्ड भी शेयर किया, क्वेश्चन आंसर्स मेक लिंक, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. लॉट्स ऑफ एप्स लोकलाइजेशन की तरफ मूव होंगी और अदरवाइज भी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज भी हैं. लेकिन बात फिर वही है कि इन चैलेंजिंग टाइम्स में आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं. एंड अगेन, बीइंग क्रिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग इनोवेटिव इज इंपॉर्टेंट. अगर हम अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट से सोच रहे हैं, so I guess all the audience needs to know this today, that what Badr has said and what the way we have evolved and we are moving into a different challenge right now, we need to think outside the box. We need to think very differently. Hybrid approach मेरे ख्याल में मेरे लिए एक बहुत अच्छा टेक अवे है आज आपकी इस बात से कि एक चीज पे आप नहीं रह सकते. You have to have probably a mix of few things.
keep experimenting, keep trying. You never know what would work. And eventually, yes, if you start creating a lot of traction, then you would be building your brand, and you need to focus on that with a different strategy. So I would only say thank you so much, Father. And thank you everyone who joined us. Thank you Asfandyar and Kamar as well. And we look forward to lots of insights. We are host. One last request आप सबसे कि हमारा e-commerce का we have a group. अगर आप लोगों से जो भी कोई और interested हैं जो dedicatedly purely e-commerce करें तो please do recommend कि हम उसमें आप भी फंसी हैं, you know that. So feel free to recommend कि अगर कोई genuinely e-commerce वाले players हैं जिनको हम we should bring them on board there. And I know हम शायद सारे questions के answer ना कर पाए हो, काफी ज़्यादा questions की list में भी देख रहा हूँ. So I'm available online. Generally, I'm available on most of the social networks. Feel free to connect and really appreciate कि आप सबने time निकाला रात को भी इस time पे. And so Numair, Abid, Fasi, Asfandyar, Kamar Saab, आप दोनों को तो बिल्कुल ही optional था. So thank you so much for joining in and spending your time with us. No, thank you once again. And yes, definitely would love to bring and recommend more people on the group of e-commerce as well. One last thing, we are having a session tomorrow with Barrister Ahmed Uzair, the guy who actually authored the new amendments in the Companies Act, which has just been approved by the president and enacted as a law. And in this session, we will be discussing lots of opportunities that have opened up, right from equity, from crowdsourcing, and many other things. So if you guys are available tomorrow, do join us at the same time. I would request my team members to share the link with you as well. And look forward to seeing you tomorrow as well, inshallah. Welcome. Thank you very much once again. Thank you so much. Thank you so much once again. A Saturday evening well spent. Wish you all well. Have a good night, and see you on the next webinar. Thank you so much, Badr, Asfandyar, Kamar, Fasi, and Abid and Shariar, of course. Thank you. Thank you. Inshallah, looking forward to many more sessions. Thank you. Thank you. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz. Khuda Hafiz, everybody. Khuda Hafiz.